Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8 of your class 10th syllabus, and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. Okay students, this chapter is very useful for 10th class as well as 11th and 12th class also. Okay, so before starting the concept of this chapter, I would like to tell you what is the meaning of trigonometry. Okay, so student, when you will see the word trigonometry, this word is the combination of two Greek words. Okay, this word is formed with the help of two Greek words. First word is trigon and the second word is metron. Okay, the word trigonometry is made with the help of two words, that is trigon plus metron. Okay, the meaning of trigon is triangle and the meaning of metron is measurement. Okay, the meaning of trigon is triangle and the meaning of metron is measurement. So all together, when we will define the meaning of trigonometry, so the meaning of trigonometry is that measurement of triangle. What is measurement of triangle? You can write it, the meaning of trigonometry is the measurement of triangles. So what is the measurement of triangle? Because we all know that in triangle there are three sides, there are three angles. So with the help of trigonometry we can measure their sides as well as their angles. Okay, so this is the basic definition of trigonometry. One more thing comes in the mind, that what is the use of trigonometry? So student, in the daily life, in terms of navigation, shipping, architecture department, the use of trigonometry is used. Means the application of trigonometry is very large in daily life. Okay, if someone asks you what is the application of trigonometry, so you will say in the navigation purpose, in the aircraft, in the architecture department, and so on. Okay, so first you should know the meaning of trigonometry and then you should know the application of trigonometry. Okay, so student, in this chapter what we will study? Okay, so there are many things which we will study in this chapter. Okay, first thing is that trigonometric ratios. I will write what we will study. First thing is trigonometric ratio. Trigonometric ratios, this we will study. Second things, the values of trigonometric ratios at different angle. Okay, and third is trigonometric identities. Trigonometric identities. Student, as per the reduced syllabus of CBSE for 2021 batch, that is UR, so there are the trigonometry ratio of complementary angles has been deleted. Okay, but when I will going to start this chapter, I will teach you the whole chapter, because if I will leave that part of complementary angles, then you will might be confused. Okay, so we will fully study this chapter. Okay, as per the previous years. Okay, so student, this is the introduction part of trigonometry, that what is the trigonometry, what is the definition of trigonometry, what is the application of trigonometry, and after that I told you what we will study, that is trigonometric ratios, the value of trigonometric ratio at different angles, and the third is trigonometric identities. Okay, so we will start from trigonometric ratios. Okay, so I hope you have noted down these things. Now student, our first thing is that
trigonometric ratios. Okay, the first part is that trigonometric ratio. What is trigonometric ratios? So student, there are total 6 trigonometric ratio used in the chapter trigonometry. Okay, there are 6 trigonometric ratios. The first 3 trigonometric ratios are known as sine, cos, tan, cosec, sec and cot. ठीक है, there are 6 trigonometric ratios and their names are sine, cos, tan, cosec, sec and cot. Okay, so student, what is the meaning of trigonometric ratio? Actually, these trigonometric ratios are associated with some angles. I am going to repeat it again. These trigonometric ratios are associated with some acute angles. Means, first things you should know, what is these? These are the trigonometric ratio. And how they will implement? They will implement only when these are associated with some angle, like sine A, sine B, sine C. Similarly, cos A, cos B, cos C. Okay, so these trigonometric ratio are associated with some angles, and basically they define the relationship between the angles and the sides of a right angle triangle. ठीक है, I am going to repeat it again. These trigonometric ratios are associated with the angles of the triangle, and that angles are the acute angle. Okay, second thing, these trigonometric ratios are define the relationship between the angles and the sides of the right angle triangle. So I will tell you one thing, that sine, cos, tan, cosec, sec, cot, these are trigonometric ratios, but the first 3 trigonometric ratios are the main trigonometric ratio. Means, only these 3 are the main trigonometric ratio, and these 3 are the reciprocal of these 3. Means, cosec is the reciprocal of sine, sec is the reciprocal of cos, and cot is the reciprocal of tan. I will tell you how. Okay, so first you should know there are 6 trigonometric ratio, and these trigonometric ratio are associated with some acute angle. Okay, and these trigonometric ratio are defined the relationship between the angle and the sides of a right angle triangle. The most important thing of this trigonometric ratio is that these trigonometric ratios are applied only in right angle triangle. You will write as a note that these trigonometric ratios are applied in only right angle triangle, and these are associated with some acute angle of a right angle triangle. Okay, so I will define all these things one by one. Okay, so see, suppose student, I have a right angle triangle. Okay, I have a right angle triangle like this. Suppose A, B, C. Triangle ABC is a right angle triangle in which angle C is a right angle. So what I will write? Triangle ABC is right angled triangle, right angle at C. Right angle at C means angle C equal to 90 degree. ठीक है, this is clear to you. ठीक है, now we all know that in a right angle triangle, the side in front of right angle is known as hypotenuse. It means our AB will be our hypotenuse. Okay, this will be our hypotenuse. ठीक है, for, and suppose this will be our hypotenuse, so this can, if I will take this as a base, so this will be perpendicular, or this will be base, this will be perpendicular. Okay, so now student, suppose I am talking about for angle B. I am talking about for angle B. If this is a right angle triangle and angle C is
right angle, then it is sure that angle A and angle B, both angle will be acute angle triangle. Are you getting my point? If this is a right angle triangle and angle C is 90 degree, so it is clear that angle A and angle B will be acute angle only. ठीक है? So from here we can write angle A and angle B are acute angle, only acute angle. ठीक है? If angle C is right angle, then angle B and angle A is acute angle. Now what I have to do? I told you trigonometric ratio, that there are 6 trigonometric ratios, okay? And trigonometric ratios are associated with some angle. And what are the angles? Those angles are acute angle, means whatever trigonometric ratios are we are going to apply with the angle, that angle will be acute. वो एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए. जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग किसी एंगल के साथ एसोसिएट करते हैं, वो एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल. मतलब कि या तो हम लोग इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं एंगल बी के साथ या एंगल ए के साथ, एंगल सी के साथ नहीं करेंगे. ओके, एंगल सी के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड ओनली फॉर एक्यूट एंगल. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, सपोज आई एम कैलकुलेटिंग all acute angle, sorry, all trigonometric ratios for angle B. ठीक है, मैंने अभी बताया आपको trigonometric ratios are associated with some angle and those angle are acute angle. तो suppose इस angle के लिए मैं सारे trigonometric ratio लिखना चाह रहा हूँ. ठीक है, अब ध्यान दो, suppose this is angle B ना, and because if this is a acute angle, so the side in front of it means the side in front of angle B will be R perpendicular, and this will be R base. ठीक है, we all know that for a particular acute angle, base and perpendicular can be interchanged, but in a right angle triangle hypotenuse is always fixed. हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है. क्या चेंज होता है? बेस और परपेंडिकुलर, और वो किसके हिसाब से चेंज होता है? एक्यूट एंगल के हिसाब से. अगर आप एंगल बी लोगे तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर आप एंगल ए लोगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और इससे सटी हुई साइड बेस होगी. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं फॉर एंगल बी AC विल बी परपेंडिकुलर एंड BC विल बी बेस. ठीक है, सो फॉर एंगल बी we have to calculate all trigonometric ratios. So suppose student, suppose this angle B is theta, ठीक है, so let angle B equal to theta is some value of the angle. So suppose the value of the angle B is theta. So for this angle I have to calculate all 6 trigonometric ratios. So our first trigonometric ratio is sine na, and sine is sine, cos, tan, cosec, sec, cot. These all angles are associated with some acute angle. So B is the acute angle. ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मैं इस एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखूं तो पहले लिखूंगा मैं ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अब मैंने यहां पे अप्लाई किया साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि साइन, कॉस, टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किसी एंगल के साथ एसोसिएट होते हैं. तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और इस ट्रायंगल के हिसाब से यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? AC. ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AB. ठीक है, ये होता है साइन थीटा. क्या होता है? साइन. इस एंगल के लिए मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली. और साइन थीटा क्या है? देखो आप देख रहे हो ना, साइन थीटा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और किसके साथ एसोसिएट है? एक्यूट एंगल के साथ. और मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल का क्या बताता है? उस ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड्स के बीच में रिलेशनशिप. तो देखो वहां से क्लियर हो गया. कभी भी आपसे पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, तो आप ये बोलोगे किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके एक्यूट एंगल
और साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, मेजरमेंट बताता है। ऐसे ही अगर मैं cos थीटा लिखूं स्टूडेंट, cos थीटा, इस वाले एंगल के लिए cos थीटा लिखूं, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, बेस अपॉन hypotenuse, and base is what? For this angle base is BC and hypotenuse is again same AB, ठीक है। Now last one is tan theta, and tan theta will be perpendicular upon base, perpendicular upon base, perpendicular is AC and base is BC. So see, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, and tan theta is perpendicular upon base, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से, see here, it is very simple। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, देखो अब मैं इसी चीज को यहां लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान देना, tan थीटा की वैल्यू एक और होती है, tan थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों, देखो tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, क्यों, sin थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू, ये h ऊपर जाएगा तो इट विल बी h अपॉन b, दिस h विल बी कैंसिल, सो इट विल कम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो देखो tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b होता है, और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तब भी क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इट शोज दैट sin थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा मतलब sin विथ सम एक्यूट एंगल, ठीक है, यहाँ पे एंगल भी थीटा था, ठीक है। इसी तरह आप इस एंगल के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, sin इस वाले एंगल के लिए अगर कोई इसको कोई दूसरा एंगल मान लो तो उसके लिए भी हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना, जो भी एक्यूट एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, जो भी एक्यूट एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, उससे सटी हुई साइड बेस, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो यहां से हमको पता चला कि sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h, cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h, एंड tan थीटा क्या होता है, b अपॉन p, सॉरी p अपॉन b। एक चीज और नोट करके आप लिख लेना, all trigonometric ratios can be applied only in right angle triangle। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग से मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर इट इज, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला था कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से 3 जो होते हैं मेन होते हैं, और बाकी 3 तो शुरू के मेन 3 से ही आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको आप याद कर लेना, इसको आप लिख लेना, आई होप आपने सब लिख लिया हो। अब देखो, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। अब देखो ध्यान से, 3 तो हो गया। अब देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, p फॉर परपेंडिकुलर। देखो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा होता है पर बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। एंड लास्ट में cot थीटा, तो cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 3 भी आप लिख लो।
समझ में आया? So note it down, student. Now student, some short tricks for you to memorize this formula. ठीक है, अगर आपको साइन कॉस टेन का डिफिनेशन नहीं याद है कि साइन थीटा पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, अगर आपको तीन याद है तो बाकी के तीन तो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताता हूँ, याद करना इसको, बड़ा इजी है। देखो पहले मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है। देखो पी बी पी एच एच बी एस सी टी, ठीक है। अब देखो P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, तो पंडित बद्री प्रसाद हो गया। उसके बाद हर हर बोल, उसके बाद सोना चांदी तोल। ठीक है, अब ध्यान दो याद कैसे करना है। पंडित बद्री प्रसाद यानी कि PBP, हर हर बोल यानी कि HHB, सोना चांदी तोल यानी कि SCT। अब क्या करो, P सबके बीच में एक डैश लगा दो, शुरू के दो में सबके बीच में एक डैश लगा दो। ठीक है, तो अब देखो P बाई एच क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P बाई एच क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो क्या होता है S फॉर साइन। ठीक है, मतलब कि ये तीन को साथ में लोगे आप तो क्या हो जाएगा, साइन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, साइन। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, tan। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ऐसे लिख लेना। उसके बाद डैश डैश लगा लेना, तो P अपॉन एच विल बी साइन थीटा, B अपॉन एच विल बी कॉस थीटा, एंड P अपॉन B विल बी tan थीटा। और जो थीटा है वो हमारा एक्यूट एंगल है, समझ में आया। और SCT क्या है हमारे, S क्या है, ये है साइन, ये है कॉस और ये है tan। ठीक है, देखो अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। तो अगर आपको साइन पता होगा P अपॉन H तो कोसेक हो जाएगा H अपॉन P, जहां पर P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है स्टूडेंट, मैंने तो इस एंगल के लिए निकाला था सारे का। ठीक है, मान लो आपको आप इस एंगल के लिए तो निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप एक्यूट एंगल के लिए निकालते हो। तो एक्यूट एंगल B भी था, एक्यूट एंगल A भी है। तो मान लो हम A ही रहने दे रहे हैं यहां से, अगर मैं A को A ही रहने दे रहा हूं, तो अगर मैं साइन, अब देखो इस एंगल की बात अगर करें, इस एंगल की, अगर मान लो मैं एंगल A की बात कर रहा हूं, एंगल A की बात कर रहा हूं, मान लो ये एंगल थीटा होता, मान लो यहां पे एंगल A थीटा होता सपोज, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती, परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये सारी चीजें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और इससे सटी हुई साइड क्या हो गई, बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल पे डिपेंड करते हैं, अगर एक्यूट एंगल चेंज कर दोगे तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर विल बी दिस, बेस विल बी दिस, एंड फॉर दिस एंगल बेस विल बी दिस, परपेंडिकुलर विल बी दिस। और कैसे पहचानोगे, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, उससे सटी हुई साइड क्या होगी, बेस, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर इस एंगल के लिए निकालें, अगर इसके लिए निकालते हैं तो इसके लिए क्या हो जाता, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज AB है। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है AC और हाइपोटेन्यूज AB। सिमिलरली अगर tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो P अपॉन B यानी कि BC अपॉन AC। यही तीन मेन है, बाकी के तीन तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। अगर साइन थीटा BC अपॉन AB है तो कोसेक थीटा हो जाएगा AB अपॉन BC। ऐसे ही कॉस थीटा अगर AC अपॉन AB है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। समझ में आया? तो ये सारे इंट्रोडक्शन है,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल से एसोसिएटेड होगा, मतलब कि कनेक्टेड होगा, जैसे कि साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, ऐसे। और क्या करता है? ये किसी ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। देखो ये एंगल है और P अपॉन H उस ट्रायंगल की क्या थी? साइड थी, जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये किस में अप्लाई होता है? ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। ठीक है, अब देखो आपके एक्सरसाइज 8.1 में बताता हूं स्टूडेंट। बस आपको वो चीज याद रहेगी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, तो आप कर लोगे। बहुत इजी है ये। देखो देखो ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, AB इज 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन फर्स्ट साइन A cos A, कॉमा है ये बीच में, एंड सेकेंड इज साइन C cos C। ठीक है, अब ध्यान दो करना क्या है स्टूडेंट। सी देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि कहां पे राइट एंगल है? बी पर। तो बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस। ठीक है, ए, दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, एंड दिस इज राइट एंगल। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, देन cos A, आफ्टर दैट साइन C, एंड आफ्टर दैट cos C। ठीक है, तो देखो ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो आपको ही पता है कि राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, मतलब कि AC विल बी आर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या सॉल्यूशन में। इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC स्टूडेंट, पहले जो साइड नहीं पता है वो साइड आप कैलकुलेट कर लो। किस थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज क्या है? हमारा AC है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और मान लो इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा कि नहीं? अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अगर आप चाहो तो इसको परपेंडिकुलर मान लो और इसको बेस मान लो, तो बेस को परपेंडिकुलर को AB मान लिया और बेस को BC मान लिया, तो ये अप्लाई किया। अब देखो AC निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर विल बी 576 प्लस 49, यानी कि AC स्क्वायर विल बी 625। So AC will be what student? AC will be under root 625, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट। ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ AC, क्योंकि AC हमारा क्या था? हाइपोटेन्यूज था। कैसे पता चला हाइपोटेन्यूज है? तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो जो निकालना है उसकी बात करते हैं। तो आई थिंक आपने ये चीज लिख ली होगी, पाइथागोरस अप्लाई किया और ये साइड की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखो एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। अब देखो
पहले क्या पूछा है, साइन ए ना, ए पूछा है। अब देखो अगर ये राइट एंगल है, इसका मतलब एंगल ए भी एक्यूट होगा और एंगल सी भी एक्यूट होगा, तो यानी कि एंगल ए और एंगल सी के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी फॉर एंगल ए। ठीक है, फॉर एंगल ए, इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं स्टूडेंट, तो मैंने आपको वही बताया है, जो एंगल आप लोगे उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। मतलब कि फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि P विल बी इक्वल टू व्हाट, BC, दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंड बेस विल बी इक्वल टू व्हाट, AB, यानी कि 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा ना, H, यानी कि AC विल बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाली साइड, बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं। कब, उसके एक्यूट एंगल के हिसाब से। अगर ये एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर ये, और अगर ये एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर ये। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को साइन ए निकालना है ना, तो साइन ए, साइन होता क्या है, साइन किसी एंगल के साथ का मतलब क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, और ए वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या था स्टूडेंट, ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा था BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो पुट कर दो, BC कितना है 7 और AC है 25, तो साइन ए आ जाएगा 7/25। और ये रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तभी इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई यूनिट बचेगा ही नहीं। तो यानी कि साइन ए कितना आ गया 7/25। ऐसे ही कॉस ए क्या होगा, कॉस इस एंगल का कॉस क्या होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पहले लिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए के लिए, एंगल ए के लिए बेस होगा हमारा AB, जो कि हमने यहां लिखा है, और हाइपोटेन्यूज तो AC ही होगा, तो यहां से आ जाएगा 24/25। तो यानी कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ऐसे ही अगर आपको tan A निकालना होता तो क्या करते, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब देखो स्टूडेंट, वीडियो पॉज कर देना और उसको यहां नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग को सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, पहले साइन C निकालना है और फिर कॉस C निकालना है। ठीक है, जैसे साइन A और कॉस A निकाले थे, वैसे ही साइन C और कॉस C। ठीक है, तो अब C की बात कर रहे हैं, एंगल C की, तो इस वाले एंगल के लिए अब फिर से लिखो, फॉर एंगल C, इस एंगल के लिए स्टूडेंट परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर चाहे तो फुल लिखो या तो P लिख दो। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, दैट इज 24 सेंटीमीटर, और बेस क्या होगा, बेस विल बी BC, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब साइन C निकालना है, तो साइन C, साइन क्या होता है, साइन थीटा या साइन C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम जानते हैं P अपॉन H होता है, और C के लिए P क्या है, फॉर एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या था हमारा AB, तो AB अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, यानी कि 24/25। सिमिलरली cos C निकालोगे तो cos C क्या होता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, C के लिए बेस क्या होगा, जस्ट सटी हुई साइड इससे एसोसिएटेड साइड, यानी कि BC, so BC upon AC, so BC is 7 and this is 25, so यहां से sin C और cos C निकल गया। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हो स्टूडेंट, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आप सारे निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आराम से कर सकते हो।
आप क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई करना, अगर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई टॉट टूडे, वट एवर थिंग्स आर लेफ्ट इन एक्सरसाइज 8.1 that we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.